Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padat Vigyan. So students, welcome to lecture number 6 of the chapter Electrostatic Potential and Capacitance. तो आज रे लेक्चर रे आमे गुटे नुवा टॉपिक स्टार्ट करिबा से टॉपिक रो नेम होची इक्विपोटेंशियल सरफेस. So let's get started. So students, the question is what is the meaning of equipotential surface? Equipotential surface रो meaning कोन? So এই जो हेडिंग रा नेम रु आमे किछि गेस करि परिबा जे इक्विपोटेंशियल मींस इक्वल पोटेंशियल. जदि गोटे सरफेस रो सबु पॉइंट रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो वैल्यू सेम थिबो then that surface is said to be an equipotential surface. So let me write the definition here. A surface is said to be an equipotential surface is said to be an equipotential surface if all the points on the surface have equal potential. So remember that गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस रो सबु पॉइंट रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो वैल्यू सेम थाए. तो आमे बे डिस्कस करिबा व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. बता मु शॉर्ट रे लिखि परिबी EPS. EPS means what? EPS means equipotential surface. So the next heading is the properties of EPS. So students, suppose I have a surface like this. In your surface अच्छी आ ये surface ऊपर मु जदि any point consider करिबी आ every point रे जदि potential रो value same थिबो. Let us say a point रे potential अच्छी 5 volt, at this point potential is 5 volt. At every point on the surface, if the potential is same, suppose 5 volt, then this surface is said to be an equipotential surface. Is that clear? Okay, so now I will discuss about the first property of the EPS. So the first property is no work is done in moving a charge from one point to another point on an EPS. तामाने गोटे EPS उपरे आमे जदि दुईटा पॉइंट कंसीडर करिबा तो से दुईटा पॉइंट भितर आमे गोटे चार्ज को मूव करिबा then no work will be done. Why? Because आमे जानिचे if we move a charge let us say Q naught from one point to the other point, then the work done is Q naught into delta V. Suppose मो पाखरे चार्ज अच्छी टेस्ट चार्ज Q naught and a Q naught charge को मु मूव करिबी from one point to another point, then the work done W will be equal to Q naught into delta V. What is delta V? Delta V होची potential difference between the two points. मु जो पॉइंट रो जो पॉइंट को मूव करिबी से दुईटा पॉइंट भितरे जहा थिबो potential difference ताको हम कहूचे delta V. So if I multiply that potential difference with the magnitude of charge, I will get the work done. But आमे कोन कहिले जे EPS उपरे आमे जे कोनोसी भी पॉइंट कंसीडर करिबा सबु पॉइंट रो पोटेंशियल सेम थिबो. जदि सबु पॉइंट रो पोटेंशियल सेम अछि then delta V केते हिजबो? delta V हिजबो 0. delta V means the potential difference. जेहेतु किछि पोटेंशियल डिफरेंस नाही ता माने delta V will be 0. So on an EPS delta V equal to 0, and since delta V is 0 ता माने W केते हिजबो? W भी हिजबो 0. ता माने no work will be done in moving a charge
from one point to another point on an EPS. So this is the first property. Okay, now we will discuss about the second property, property number 2. Electric field is always perpendicular. Electric field is always perpendicular, is always perpendicular to EPS at every point, to EPS at every point. This is a very important property. Remember that electric field is always perpendicular to EPS at every point on it. Why? Because suppose consider that this is a surface, and on this surface all the points have the same potential. तार माने एटा होजी गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस. इज दैट क्लियर? सो इक्विपोटेंशियल सरफेस रो मीनिंग कोन? जदि मु से सरफेस ऊपर दुईटा पॉइंट कंसीडर करिवि, से दुईटा पॉइंट भितरे dv रो वैल्यू केते हे जिवो? 0 हे जिवो. काहेकि ना बोथ द पॉइंट्स हैव द सेम पोटेंशियल. ठीक अछि? तार माने यदि dv इक्वल टू 0 हे गला, आमे डिराइव करिचे, आमे गोटे फार्मूला डिराइव करथिले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल. आउ सेही केस रे डिराइव करथिले जे E इक्वल टू माइनस dv बाय dr, बा वेक्टर फॉर्म रे आमे लिखितले dv इक्वल टू माइनस E डॉट dr, dv इक्वल टू माइनस E डॉट dr. सो गोटे EPS पाई dv इक्वल टू 0, ता माने मैं लिखि परिबी माइनस E डॉट dr इक्वल टू 0. सो ये जो dr लिखा है, dr रा मीनिंग कोन? dr रा मीनिंग होची एनी डिस्प्लेसमेंट ऑन द सरफेस ऑन द EPS. सपोज मु ए पॉइंट रो पॉइंट ए रो पॉइंट बी को सपोज मु मूव करिबी, देन दिस विल बी dr. इज दैट क्लियर? त माने dr रा मीनिंग होची एनी डिस्प्लेसमेंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो E डॉट dr माइनस E डॉट dr रा वैल्यू 0 हो जिवो, बा हम लिखि परिबी E डॉट dr इक्वल टू 0. ओके, सो dr तो 0 नुहे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जदि थिबो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नुहे, ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट रो डॉट प्रोडक्ट 0 होची. ता माने E into dr into cos theta equal to 0. E dr cos theta is 0. What is the cos? What is theta? Theta is the angle between the electric field and the displacement. So E is not 0, dr is not 0. It means cos theta must be 0. And if cos theta is 0, then theta is pi by 2 or 90 degree. And theta is the angle between electric field and the displacement. So electric field should be perpendicular to the displacement, and the displacement vector lies on the plane of the EPS. ता माने electric field रो direction एमते आसीबो. Electric field must be perpendicular to the displacement, or electric field must be perpendicular to the equipotential surface. So in this way you can prove that the electric field is always normal or is always perpendicular to the equipotential surface. So this is the second property of EPS. Now we will talk about the third property of EPS. The third property: two equipotential surfaces, two equipotential surfaces never intersect each other, never intersect each other, never intersect each other. Like आमे डिस्कस करिचे जे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक से भली टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. What is the reason behind it? Suppose assume that this is one EPS and this is the other EPS. Okay, so if they intersect, then what will be the problem? जदि से माने intersect करिवे, then आमे गोटे point पाइबा which is common to both the surfaces. Suppose assume that the first surface corresponds to a potential of V1. Suppose all the points on the first surface have the same potential, that is V1, and this is the second EPS, and suppose assume that all the points on the second EPS have the potential V2. ता माने
First surface corresponds to potential V1, the second surface corresponds to potential V2. जदि से माने इंटरसेक्ट करिवे then what will happen? आमे जो common point पाइबा, this common point means this point is common to both the surfaces. तो एई पॉइंट रो पोटेंशियल V1 and V2 both हे जिवो because एई पॉइंट suppose this point is P, point P lies on the first UPS as well as on the second UPS. ता माने गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे आमे दुईटा पोटेंशियल पाई परिबा नाही. The total potential of a point is fixed. तो आमे एठी कोन देखले ना गोटे सिंगल पॉइंट रे आमे दुईटा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल पाउचे which is not possible. That's why remember that two equipotential surfaces will never intersect each other. Is that clear? Okay. So now we'll go to the next property, property number 4. What is the property? Equipotential surfaces are closure in the region of strong electric field and farther apart in the region of weak electric field. Equipotential surfaces are closer in the region of strong electric field and farther apart in the region of weak electric field. So what is the meaning of this property? So students आमे जानी छे जे electric field is equal to minus dV by dr. So जो negative sign है से negative sign रा meaning कौन ना potential decreases along the direction of electric field. But आमे जति केवल magnitude consider करिबा mod नै जिबा then E केता हबो E हे जिवो dV E mod equal to dV mod by dr. Okay. तो आमे एते बेले गोटे EPS draw करूचे for any kind of charge body. It may be a point charge, it may be a line charge, it may be a uniform electric field. For any kind of charge distribution आमे जते बेले गोटे EPS draw करूचे तो से केस हम देखिबा the separation between the EPS is less if electric field is strong. जो region रे electric field strong थिबो से region रे EPS मानक भितरे जो separation थाए we can draw many EPS गोटे given charge body पाई we can draw a large number of equipotential surfaces and there is some separation between two EPS. तो से separation ता depend करियो कहा ऊपर it will depend on the value of electric field at that point. Suppose I will draw the equipotential surfaces having potential difference of 2 volt. Suppose I would assume karo suppose this is the first EPS, this is the second EPS, this is the third EPS, like this. Suppose this EPS has value V volt, this EPS has value V minus 2 volt, this EPS has value V minus 4 volt, the next EPS has value V minus 6 volt, like this. तार मीनिंग कौन आमे 2 वोल्ट रो गैप रे बा 2 वोल्ट रो डिफरेंस रे आमे डिफरेंट ईपीएस ड्रा करूचे तो एटा होचे फर्स्ट ईपीएस सेकंड ईपीएस थर्ड ईपीएस फोर्थ ईपीएस तो फर्स्ट और सेकंड ईपीएस भितरे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल केते अछि 2 वोल्ट अछि मन रखो जे गोटे गिवन ईपीएस ऊपर सब पॉइंट रो पोटेंशियल सेम थिबो ता माने मु जो फर्स्ट सरफेस ड्रा करिछि जदि मो फर्स्ट सरफेस ऊपर पॉइंट कंसीडर करे रहा पॉइंट ए डाला पॉइंट बी देन डाला पॉइंट सी देन ए बी आउ सी रो पोटेंशियल सेम हेबो सेटा हबो v किंतु जदि मु आउ गोटे ईपीएस ड्रा कली पॉइंट डी पॉइंट ई कहली देन पॉइंट डी आउ पॉइंट ई रो पोटेंशियल सेम रहिबो
तार वैल्यू केते हबो v - 2 वोल्ट हबो किंतु पॉइंट ए और पॉइंट डी रो पोटेंशियल सेम नुहे पॉइंट ए गोटे सेपरेट ईपीएस ऊपर अछि पॉइंट डी आउ गोटे ईपीएस ऊपर अछि ता माने ए रो पोटेंशियल और डी रो पोटेंशियल सेम हबोनी अब ए जो दुईटा रहिला ईपीएस ईपीएस नंबर 1 ईपीएस नंबर 2 एमान का भितरे पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीची ना 2 वोल्ट सिमिलरली सेकंड ईपीएस और थर्ड ईपीएस भितरे पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीची एटा होची अगेन 2 वोल्ट काहेकि ना में v -2 v -4 v -6 एम नै छै सेमती थर्ड ईपीएस और फोर्थ ईपीएस भितरे केते अछि पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ता माने जदि हमें गोटे फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करिक जदि हमें ईपीएस ड्रा करिबा देन से ईपीएस मानक भितरे गैप कहा पर डिपेंड करिवो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू पर तो एठी मु जो फिगर ड्रा करिछि मु ऑलमोस्ट गैप को सेम रखिछि बट ए फिगरटा टेक्निकली भूल अछि काहे कि भूल अछि एबे देखो ई होछ केते dv by dr सो dr केते हिजबो dr हिजबो dv by e dv by e सो dr मीनिंग कोन ना dr मीनिंग होची सेपरेशन बिटवीन द टू ईपीएस आमे जते गोटे ईपीएस रु आ गोटे ईपीएस को मूव करूचे ए जो डिस्प्लेसमेंट रहिला आको मु कहूची dr सो dr इक्वल टू dv by e तो जदि हमें गोटे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रे ईपीएस ड्रा करूचे ता माने dv कांस्टेंट हिजबो तो ए जो फिगर मु ड्रा करिछि ए फिगर रे dv रे वैल्यू केते 2 वोल्ट नै आइछि 2 वोल्ट रो माने कोन 2 वोल्ट रो डिफरेंस नै कि मु ईपीएस सब ड्रा करिछि तो जदि मु dv को कांस्टेंट कर देली देन dr रो वैल्यू हिजबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dr is inversely proportional to the magnitude of electric field ता माने जदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हे जिवो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हे जिवो बा इलेक्ट्रिक फील्ड रे वैल्यू अधिक हे जिवो देन dr रो वैल्यू कमी जिवो और dr रो मीनिंग कोन द सेपरेशन बिटवीन टू ईपीएस ता माने जदि हमें गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन रे अच्छे एंड वी आर ड्राइंग ईपीएस देयर देन द ईपीएस विल बी क्लोजर टू ईच अदर बा ईपीएस मानक भितरे जो गैप थिबो दैट गैप विल बी लेस आ जदि हमें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अच्छे ता माने e रा वैल्यू विल बी लेस एंड द वैल्यू ऑफ dr विल बी मोर ता माने द सेपरेशन बिटवीन द ईपीएस विल बी मोर सो remember this fourth point that equipotential surfaces are closer in the region of strong electric field जो region रे electric field strong थिबो से region रे EPS मान भितर गैप टा कम कम रहिबो but the EPS are farther apart in the region of weak electric field जो region रे weak electric field थिबो से region रे EPS मान भितर जो गैप रहिबो that gap will be more is that clear ता माने EPS को स्टडी करके हमें कहि परिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू स्ट्रांग अछि ना वीक अछि इज दैट क्लियर जद ईपीएस मान के भितर गैप अधिक थिबो त माने सेटा होछि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ the gap or the separation between the EPS are less if they are close to each other ta mane the electric field is strong is that clear so students these are the four important properties of the equipotential surfaces तो हमें बे किछि किछि आइडिया पाई गले about EPS and now we will draw the equipotential surfaces for various type of charge distribution so EPS draw करिया पई हमको माइंड रखे पड़िबो जे EPS होची कोन EPS होची गोटे लोकस बा गोटे सरफेस हमें कहि परिबा जो सरफेस ऊपर सब पॉइंट रो पोटेंशियल सेम थिबो so now we will draw the equipotential surfaces for different charge distribution for different charge distribution तो फर्स्ट हमें गोटे सिंपल केस रो स्टार्ट करिबा फॉर ए पॉइंट चार्ज गोटे पॉइंट चार्ज पई इक्विपोटेंशियल सरफेस रो शेप केमते आसीबो दिस इज द सिंपलेस्ट केस
सो सपोज मो पाखरे गोटे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अच्छी दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पाई मु यूपीएस ड्रा करी सो आमे जानिचे गोटे पॉइंट चार्ज पाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रा फार्मूला कोन v इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q by r v equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r सो आमे कोन देखले एठी ना पोटेंशियल रो वैल्यू डिपेंड करूची कहा ऊपर ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ओके सो जदि मु कोन करिबी ना ए जो चार्ज प्लस क्यू अछि से चार्ज प्लस क्यू थारो गोटे गिवन डिस्टेंस रे गोटे पॉइंट चूज कली सपोज this distance is let us say r1 suppose this distance is r1 तो ए जो पॉइंट रे पोटेंशियल केते आसीबो v1 equal to k q by r1 आसीबो v equal to v1 equal to k q by r1 what is k k is 1 by 4 pi epsilon naught similarly ए जो चार्ज प्लस क्यू अछि प्लस क्यू चार्ज थारो r1 डिस्टेंस रे मु बहुत गुडे पॉइंट चूज करि परिबी देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट आई कैन चूज फ्रॉम द चार्ज q1 एठी गुडे पॉइंट चूज करि परिबी एठी गुडे पॉइंट चूज करि परिबी एठी गुडे पॉइंट चूज करि परिबी सो आई कैन चूज मेनी पॉइंट्स आई कैन चूज मेनी पॉइंट्स around q which are at the same distance r1 from the charge plus q जदि सबु पॉइंट रे मु पोटेंशियल कैलकुलेट करिवि then the potential will also be same जेहेतु ए सबु पॉइंट चार्ज प्लस क्यू थारो इक्वल डिस्टेंस रे अछंती इट मींस दे हैव द सेम पोटेंशियल रा किछि डायरेक्शन है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड तो जदि मु कोन करिवि ना प्लस क्यू को सेंटर करिकि ता चारिपटे गोटे गिवन r1 डिस्टेंस रे जेते सब पॉइंट अछि कंसीडर करिवि सब पॉइंट रो पोटेंशियल सेम आसीबो ता माने all those points lie on an EPS तो आमे जो स्क्रीन रे फिगर ड्रा करूचे ए स्क्रीन टा होची 2 डायमेंशन दैट्स व्हाई यदि मैं सब पॉइंट को जॉइन कर देबी इट विल लुक लाइक ए सर्कल बट इन रियलिटी आमे एतरे 3D कंसीडर करिबा 3 डायमेंशन कंसीडर करिबा देन आमे गोटे स्फीयर पाइबा in screen when I am drawing the diagram on a board or on the paper or on the screen then we are drawing the diagram in 2 dimension that's why we are getting a circle the figure looks like a circle but imagine that we have a point and we are locating the points which are at equal distances from the charge plus q जदि हम ताको जॉइन कर देबा सब पॉइंट को मैंने जॉइन करे सरफेस बनेबा दैट सरफेस विल बी अ स्फीयर इज दैट क्लियर ता माने गोटे पॉइंट चार्ज पई इक्विपोटेंशियल सरफेस रा शेप होची स्फीयरिकल शेप सो रिमेंबर दैट ईपीएस फॉर ए पॉइंट चार्ज इज स्फीयरिकल इन शेप इज दैट क्लियर तो ए हमें जो स्फीयर पाइले ए स्फीयर सब पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू सेम थिबो तार वैल्यू के थिबो v1 = kq by r1 सिमिलरली इफ यू वांट तमे चाहिले r2 डिस्टेंस रे अगेन तमे आ गोटे स्फीयर कंसीडर कर परिबो सपोज म आ गोटे स्फीयर कंसीडर कली एट ए डिस्टेंस ऑफ r2 ओके सेमती r3 डिस्टेंस ने कि म आ गोटे स्फीयर ड्रा करबी सो r1 रेडियस रे गोटे स्फीयर हला r2 रेडियस रे आ गोटे स्फीयर हबो सेमती r3 रेडियस रे भी आ गोटे स्फीयर हे परिबो ता माने आई कैन ड्रा मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो एडा हाउ फर्स्ट ईपीएस हैविंग पोटेंशियल v1 दिस इज द सेकंड ईपीएस हैविंग पोटेंशियल v2 दिस इज द थर्ड ईपीएस हैविंग पोटेंशियल v3 सिमिलरली आई कैन ड्रा मेनी ईपीएस इज दैट क्लियर एंड जदि मु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करिबी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस हम जानचे गोटे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केमि थाए दे आर रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस इज दैट क्लियर सो हमें बहुत इजीली गोटे पॉइंट चार्ज पई ईपीएस ड्रा करि परिबा सो रिमेंबर दैट गोटे पॉइंट चार्ज पई ईपीएस हमें केमति ड्रा करिबा एज कंसेंट्रिक स्फीयर्स एंड आ गोटे जिंस मन रख
जस्ट पूर्व मैं कहूली जे द सेपरेशन बिटवीन द यूपीएस इज स्मॉल इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज and if the electric field is weak then the separation will be more. So ये देखो v रो वैल्यू केते अछि 1 by 4 pi epsilon q by r and electric field due to a point charge तार वैल्यू केते 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ठीक अछि। तो आमे ए जो फिगर ड्रा करछे ए फिगर को आमे टेक्निकली टिके करेक्ट करबा मो एठी आ गोटे फिगर ड्रा करूची सपोज मो पाखरे गोटे पॉइंट चार्ज अछि ओके दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस q एंड हमें जानिचे जदि हमें पॉइंट चार्ज थारू आवे जिबा देन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड रे वैल्यू कमी कमी जिवो ता माने विथ द इंक्रीज इन r इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ता माने चार्ज थारू हमें यदि दूरे दूरे जिबा देन डेफिनेटली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस। तो आमे जो यूपीएस ड्रा करूचे जदि हमें गोटे गिवन पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करी कि हमें नंबर ऑफ यूपीएस ड्रा करिबा देन आमे देखिबा जे चार्ज रो पाखरे नियर द चार्ज the gap between UPS will be small. Suppose it has first UPS, it has second UPS. तुम देखि पड़थबो the gap is small. Gap most small रखिछि gap टाको. And as we move away from the charge, the gap will gradually increase. Gap टाके बढ़ी बढ़ी जिवो. काहे कि ना जते हमें चार्ज थ्रू दूरे दूरे जाउचे इलेक्ट्रिक फील्ड रे वैल्यू डिक्रीज होउची. And electric field रे वैल्यू decrease हेले कोन हबो the separation between the UPS will increase ठीक अछि। एबे हम कोन करबी धीरे धीरे UPS भितरे गैप बढ़ी बढ़ी जिबी। Is that clear? So this is the correct diagram to show UPS for a point charge हम जदि सब यूपीएस भितर गैप को सेम रख दबा देन दैट डायग्राम विल बी इनकरेक्ट। सो धीरे धीरे हमें कोन करबा यूपीएस भितर गैप को बढ़े बढ़े नबा। द रीजन इज वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग व्हेन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज। इज दैट क्लियर? ओके सो नाउ वी विल गो टू ड्रॉ द यूपीएस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हमें गोटे सिंगल पॉइंट चार्ज में ड्रॉ कले देखले एटा गोटे स्फेरिकल शेप आसुचे then we will draw UPS for an electric dipole. For an electric dipole. Electric dipole means we have a positive charge, a negative charge. We have a positive charge and a negative charge. Suppose this is the positive charge and this is the negative charge. तो हमें आप UPS draw करिबा। So students हमें first देखिबा हमें जानचे जे गोटे पॉइंट चार्ज पई यूपीएस रा शेप केमते आसे स्फेरिकल आसीबो एंड ए केस रे जे तम पकरे दुईटा पॉइंट चार्ज अछि गोटे अछि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज गोटे अछि नेगेटिव पॉइंट चार्ज तो सेही केस रे अगेन हमें स्फेरिकल शेप पाइबा बट गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ माने टिके मॉडिफाइड स्फीयर हमें ड्रा करिया पड़िबो। से मॉडिफाइड स्फीयर रा मीनिंग कोन देखो हमें को देखिबा जे को रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग अछि आ को रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक अछि। सो एठी रहला पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए रे पॉइंट बी रे अछि नेगेटिव चार्ज अछि तो हम देखिबा पॉजिटिव चार्ज आ नेगेटिव चार्ज भितरे जो रीजन अछि ए जो रीजनटा ए आ बी भितरे जो रीजन अछि से रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग ना आउटसाइड द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग। सपोज मैं एठी गोटे पॉइंट कंसीडर कली in between the two charges आउ गोटे पॉइंट मु कंसीडर कली एठी गोटे आ गोटे एठी ड्रा कली। सपोज दिस इज पॉइंट P दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। हम देखिबा ए जो तीनटा पॉइंट में चूज कले P Q R को पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग आ को पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक तो हम केम जानिबा। सो एबे देखो जदि मु पॉइंट P चूज करूची तो पॉइंट P रे कोन होची ना हम जानिचे ए जो पॉइंट P रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज पाइबा ड्यू टू माइनस चार्ज पाइबा and we know that electric field due to a positive charge is away from it। तो जदि मु पॉइंट P को चूज करिछि तो ए पॉइंट P रे पॉजिटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन क्वाड हबो away from the charge ता माने in this direction and for a negative charge electric field is towards it ता माने पॉइंट P रे
नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोड हेबो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज त हम देखि परछे एठी both the electric fields are in the same direction ता माने the total electric field will be equal to the sum of magnitudes of the two electric fields ता माने definitely point P रे total electric field रे value बढ़ी जिवो but look at point Q रे positive charge पई electric field direction कोड आसीबो away from it माने towards left and due to negative charge आसीबो towards it तमने towards right तो एबे हम देखि पारु जे एठी कोन होउची ना the two electric fields are opposite to each other त माने the total electric field टिके decrease हे जिवो equal to the difference of magnitudes of the two electric fields similarly हमें जे point R consider करिबा point R रे positive charge पे electric field जिवो away from the positive charge and for the negative charge it will be towards the negative charge and again तमे देखि पारथबो the two electric fields are opposite in direction ता माने point R रे मध्य electric field रे वैल्यू कमी जाउची ता माने जदी आमे दुईटा चार्ज रो in between the two charge आमे गोटे point consider करूचे then से region रे electric field रो value अधिक आसुची but outside the two charges electric field value कम आसुची ता माने आमे जो EPS ड्रा करिबा से EPS भितरे सेपरेशन बा जो गैप रहिबो that gap will be less in this region ए region भितरे जो gap आसीबो EPS भितरे कम आसीबो why because electric field is strong and left of positive charge right of negative charge माने outside the two charge system the gap between the EPS will be large so now we will draw the diagram here एटा होची positive charge एटा होची negative charge तो आमे बे जो EPS draw करिबा केमति draw करिबा like this आमे spherical shape draw करिबा no doubt about that but से जो sphere draw करिबा समान जो gap रहिबो से gap टा कम रहिबो in between the two charges and the gap will be more outside the two charges देखि परथबो positive charge रो left side रे जो gap नउची that gap is large but positive charge रो right side जो gap नउची that gap is small काहे कि ना ए region रे electric field रो value टा strong अछि strong electric field पाउचे similarly for negative charge हम draw करछि से सेम कांसेप्ट में अप्लाई करी की ड्रा करिवि दुईटा चार्ज रो आउटसाइड रीजन रे मु गैप बढ़ी देबी बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक देयर एंड इन बिटवीन द टू चार्जेस द गैप विल बी स्मॉल ओके सो तमे माने बहिरु भी ए फिगर पाई जिवो बहुत आराम से तो ओनली तमे बुझे को चेष्टा करो जे कोन पई गैप रो डिफरेंस आसुची आमे एते बेले कंसीडर करूचे इन बिटवीन द टू चार्जेस गैप कमी जाउची एंड आउटसाइड द टू चार्जेस गैप बढ़ी जाउची तार कारण ला या बिकॉज़ इन बिटवीन द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग एंड आउटसाइड द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि हम ड्रा करिबा हम जानिछे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is that clear so in this way you can draw the equipotential surfaces for an electric dipole is that clear the next I may draw kariba EPS for two like charges for two positive charges dipole रे गोटे पॉजिटिव थिला गोटे नेगेटिव थिला बट एबे में कोन करिबा ना EPS ड्रा करिबा फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस एठी गोटे अछि पॉजिटिव चार्ज एठी आ गोटे अछि पॉजिटिव चार्ज so at point A and point B we have two positive charges so now we will draw EPS for this system of two charges again हमें तीनटा पॉइंट चूज करिबा पॉइंट P point Q and point R so at point P जदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर करिबा बा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करिबा then due to this positive charge which is at A electric field will be away from it means towards right and due to this charge at B electric field will be again away from it तमने towards left तो हमें कोन देखले एठी जदि हमें दुईटा चार्ज भितरे गोटे पॉइंट कंसीडर करूचे then
the electric fields due to the two positive charges are opposite in direction. Is that clear? तो सही केस रे कोन हबो ना आ भितरे माने दुईटा चार्ज रो इन बिटवीन रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू डिक्रीज हो जिवो. But look at the point Q. At this point Q, electric field due to this charge plus Q will be towards left away from it, and due to the charge at B, again it is towards left. So the two electric fields will be added up. At point R, again the same case, the electric field due to both the charges will be towards right, so the total electric field will be more. ता माने आमे कोन देखले एठी इलेक्ट्रिक डाइपोल केस रे आमे जहा पाउथले तार ठीक ऑपोजिट पाइले इन केस ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस. ता माने इन बिटवीन द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, and outside the two charges electric field is strong. ता माने आमे जो ईपीएस ड्रा करिबा ईपीएस मान का भितर जो गैप रहिबो that gap will be more in between the two charges and the gap will be less outside the two charges. So now let us draw the diagram here. This is positive charge, this is the second positive charge. ता आमे जो ईपीएस ड्रा करिबा सेमान का भितर गैप टा अधिक रहिबो in between the two charges. Dipole रो ठीक opposite मु ड्रा करूची. डाइपोल रे मु जेमती ड्रा करथली तार ठीक opposite मु ड्रा करूची. ता माने दुईटा चार्ज इन बिटवीन रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू अधिक सॉरी कम अछि, दैट्स व्हाई द गैप बिटवीन ईपीएस इज मोर. Is that clear? And जदि हमें electric field lines draw करिबा, the electric field lines will be like this, and finally हम एमती गोटे draw भी करि परिबा. ओके, तमे माने बहिरो बहुत भल से देखि परिबो किंतु फिगर देइछि, बट यू हैव टू नो द कांसेप्ट कोन पाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी हां इलेक्ट्रिक सॉरी ईपीएस भितरे जो गैप रहउछि से गैप रो डिफरेंस कौन पाई शो करूची सेटा फर्स्ट तुमको बुझिया को पड़िबो. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, it depends on the strength of electric field. So in this way you can draw the EPS for two positive charges. Next is EPS for a line charge. गोटे लाइन चार्ज पाई EPS ड्रा करिबी. लाइन चार्ज रे मीनिंग कोन, सपोज मो पाखरे गोटे wire अच्छी and this wire is uniformly charged. This wire is uniformly charged. तो ए charged wire पाई EPS मु केमती ड्रा करिबी. तमे देखले जदि हम पाखरे गोटे पॉइंट चार्ज अच्छी, then for the point charge EPS is spherical in shape. काहे कि ना जदि मु से पॉइंट चार्ज थारु इक्वल डिस्टेंस रे सबु जदि सब पॉइंट अच्छी, जदि से सबु पॉइंट को मु जॉइन कर देबी तो मु जो सरफेस पाइबी दैट सरफेस इज sphere, and that's why all the points on the sphere are equal at equal distance from the charge, and that's why they have the same potential, and the surface is said to be an EPS or equipotential surface. ठीक से भली जदि हम पाखरे गोटे चार्ज वायर अछि लाइक this is the charge wire, तो ता पय EPS केमती आसीबो ना the EPS will be cylindrical surface, concentric cylindrical surface. तुम देखि परथबो जदि मु गोटे सिलिंडर ड्रा करिबी such that the wire is the axis of the cylinder, the wire is the axis of the cylinder, then you can see that all the points on the surface of the cylinder, on the curved surface of the cylinder, are at equal distance from the wire. So this is one EPS. Similarly I can draw many concentric cylinders. ठीक अछि, तो मु जते concentric cylinder draw करि परिबी all those cylinders will be EPS. ठीक अछि, ता माने हम एति मन रखिबा जे गोटे लाइन चार्ज पाई EPS रो शेप केमती आसीबो as concentric cylinders. Is that clear? Next हला electric potential equipotential surface for uniform electric field. Number 5 होची for uniform electric field. Uniform electric field रा मीनिंग कोन
Now, the strength of electric field is same at every point, and the direction of electric field is also same. And we can represent the uniform electric field by drawing equispaced parallel field lines. तो हम डिस्कस कले जे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द EPS and the separation between the two EPS depends on the value of electric field strength. जो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थिबो सेठी गैप टा बढ़ी जिवो, जो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग थिबो सेठी गैप कमी जिवो. किंतु जदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विषय डिस्कस करूचे ता माने the value of electric field is same everywhere. ता माने जदि आमे EPS ड्रॉ करिबा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दुईटा जिनस माइंड रखिया पड़िबो. द फर्स्ट वन इज द गैप बिटवीन द डिफरेंट EPS will be same. आमे गैप को कमाइबानी कि बढ़ाइबानी. The second one is the electric field lines must be perpendicular to the EPS, and electric field lines due to a uniform electric field are given by parallel and equispaced field line. तो एई दुईटा जिनस आमे माइंड रे रखे कि जदि फिगर ड्रॉ करिबा फिगर टा केमती आसीबो. द फिगर विल बी लाइक दिस. आमे पाइ जिबा प्लेन surfaces like this. We will get plane surfaces at equal gaps. Equal gap रे आमे plane surfaces पाइ जिबा. And if I draw the electric field lines, the electric field lines will be like this. These are the electric field lines. तुम देखि पारथुबो मु जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूची. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द EPS and these are parallel and equispaced which represent uniform electric field. ता माने uniform electric field पाई EPS रो शेप केमती आसीबो ना plane surfaces, and all these surfaces are perpendicular to the electric field lines, and the gap between the EPS are equal. I mean, जो gap नीचे the gap are equal. So students, in this way you can draw the equipotential surfaces for different types of charge distribution. तो आज रा क्लास रे हमें जहाँ सब डिस्कस कले about EPS, about its properties and the shape of EPS for different type of charge distribution. I hope that you have understood all the concepts very clearly. So that's all for today's class. In the next class we will discuss about the electric potential energy of a system of charges. So till then, have a nice day and bye bye.